Welcome, everyone. I'll keep my opening remarks in English because you're going to hear a lot of beautiful Hindi today. So, first of all, thank you. Thank you to Amruta. First of all, she supports all my crazy ideas, including this one. Um, to Manish for helping with the video recording. Um, to all of you for coming as well. I know how rare it is to give an evening to poetry. We'll try to make it worth everyone's while. I'm very confident that we'll have a great evening today. First of all, it's the Mahabharata. Uh, Not many better epics have been written, and the story will captivate you, I'm sure. The second is Dinkar's interpretation of the life of Karna from the Mahabharata, which is probably one of the best and most interesting literary achievements in post independence Hindi literature. Hopefully, my recital of it should also keep your interest as long as it's done with some talent. It's been a lot of preparation. And finally, it's all of you. They say the best audience is a Zinda Dil audience. So you see, I have no notes. It's all going to be from my heart. It's a long poem, but it's a fun poem. Whatever feeling I evoke in you, my only request is express it. If you feel like clapping, clap. If you feel stunned into silence, some of the words are as beautiful. They will make you do that. If you feel you want to once more, just say it. Just get involved. Whatever emotion you feel, express it. Um, and I'm sure we'll have a lot of fun. So, what I'll do at the beginning is for those of you who might be less familiar with the story or at least have not had any recent exposure to reading the Mahabharata, I'll just provide a basic structure so that you'll just enjoy the poem a little bit better. So, if you think of the Kuru dynasty and some of the elders, so you think of Dhritarashtra, Pandu, and Vidur, three brothers born from the same father, different mothers, along with their uncle Bhishma, leaders of the Kuru kingdom. They get along with each other, they're very courageous, they've got each other's back, and under them the kingdom flourishes. Dhritarashtra then marries Gandhari, and together they have 100 sons, the oldest of whom is Duryodhan. Also in the poetry will be referred to as Kururaj, Kurupati, and Duryodhan. Now, Duryodhan is evil, we all know that. But he's not only evil. There are a lot of complexities to his character. He's extremely courageous. He's a great warrior. He's a fantastic administrator. He knows how to build an army, to build alliances. He's extremely loyal to his friends. And hopefully, you'll see both the evil and some of that complexity today. His main problem is that he is jealous of his cousins. And it's an overwhelming kind of jealousy. He can't see them because they outshine him at every step of the way. He's not able to process that in a constructive way, and that leads to his eventual downfall. Dhritarashtra's brother Pandu, who's the father of the Pandavas, he's been cursed. If he ever has sexual intercourse, he's going to die. That's what the curse is about. He marries the great Kunti, also called Prutha at birth. Kunti luckily has a boon that she can call on any god she wishes and conceive a son from him. But she's also concealing a great secret. She has been tempted into calling a god, the sun god, before she was married and has conceived Karna. Now, she's also a princess and she understands that there are consequences to being an unwed mother. So she panics and she sets the boy adrift in a makeshift raft. The raft is found by a couple from the Sooth community, a lower caste to the Brahmins and Kshatriyas.
And Karna's adoptive parents become Adirath, who's a charioteer in the Kuru court, and Radha, his mother, who gives him a lot of love. And therefore, Karna is always and often referred to as Radheya, Radha's son. You might hear some of these words today. After marriage to Kunti, Pandu and Kunti decide that they want children. So Kunti calls on the god Dharma, and with him has Yudhishthir, called Dharmaraj or Dharma, the righteous. She calls the god Vayu and has Bhim, the greatest, the strongest warrior the world has ever seen. She then calls Indra, and with Indra has Arjun, clearly the hero of the Mahabharata and one of the greatest archers the world has seen. She then transfers a boon to Madri, the second wife, who calls the god Ashwins and has twin sons, the beautiful Nakul and Sahadev. Together they become the 5 Pandavas. Now Yudhishthir, for all his good qualities, also has a gambling habit. And he is suckered into a game of loaded dice by Duryodhan and his mama Shakuni, and not just loses all his treasure and his kingdom, but he also enslaves his brothers, himself, and their wife Draupadi, also known as Panchali. Now the elders of the Kuru kingdom know that this would be an utter humiliation and it would only lead to instant war. So a compromise is struck, and what is decided is that the Pandavas will go away on exile for 12 years in a forest, followed by 1 year of living without being recognized in one of the kingdoms adjoining. And if they are able to fulfill that, they can reclaim their share of the kingdom. They fulfill their end of the bargain, but Duryodhan, because he's a great administrator, has used that time to consolidate his power and is in no mood to give them their fair share. That sets in train the greatest battle Hindu mythology has ever seen, the Mahabharata. Now both sides have a few trump cards. Duryodhan has the entire Kuru establishment, but he also has Karna. And the way that has happened is, many years ago, when Arjun was about to be declared winner of an archery competition, an unknown young man had arrived at the scene unannounced and challenged Arjun to a duel. Arjun was ready for the duel, but the elders of the Kuru kingdom felt a little bit of nervousness. There was clearly something special about this boy. So Kripacharya, who was one of the elders of the Kuru kingdom, said, "You have to be a Kshatriya to challenge another Kshatriya. So please tell us what your caste is." And Karna was going to go away dejected from that situation, where Duryodhan, spotting an opportunity of a lifetime, stood up and said that a Kshatriya should be determined by his actions, not by his birth. And he also made Karna a king of one of the provinces within the kingdom and earned his eternal loyalty in the process. Of course, the Pandavas had Lord Krishna on their side. Now, technically in the Mahabharata, Krishna is also a minor prince who is very keen to keep good relationships with both the Kauravas and the Pandavas. But of course, he's also God, and therefore he looms large on the story. He clearly has his favorites, who are the Pandavas, especially Arjun, and he constantly gives him great advice, the greatest of which was, of course, the Bhagavad Gita. And Arjun, of course, treats Lord Krishna as their guru. So that's all you really need to know. So the poem that I'm going to describe is chapter 3 of Rashmirathi, which starts with exile. What does exile do to a human being? Because before the Pandavas went on exile, of course they were slightly better than the Kauravas, but they were privileged princes living a life of luxury.
slightly better, but were they really, would they really have beaten Duryodhan and the entire Kuru establishment? Maybe, maybe not. But after they came back from exile, they're probably unbeatable. And Dinkar poses a question not just about the Mahabharata, but to all of us, to say, what is the importance of having a real challenge in your life? What is the importance of suffering from hardship? And what does it do to your personality? हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तपकर. Pavak is fire, Kanak is gold, Sadrush is corn. The Pandavas returned from exile like corn emerges golden from a fire. हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तपकर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए. सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं. मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं. शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को. है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में. मग इज पात. है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में. खम ठोक ठेलता है जब नर. खम ठोक ठेलना is the action a wrestler makes before he locks his opponent into combat. खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाव उखड़. मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है. गुण बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानवों के भीतर. मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं बन पाता है. पीसा जाता जब इक्षुदंड, इक्षुदंड इज शुगरकेन. पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड. मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार. ललना इज ब्यूटीफुल वुमेन. जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं. वसुधा का नेता कौन हुआ? Who are the ones who have ruled the world? भूखंड विजेता कौन हुआ? Who are the warriors who have achieved great success? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? Who are the ones who have achieved incomparable success in any walk of life? नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? Who are the ones who have established new religions? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया. वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया. जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं. मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही. वाटिका और वन एक नहीं. Vatika is a garden, one forest. But what he's really describing is a prince who lives in a castle is very different from someone who suffered hardship. वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं. वर्षा अंधड़ आतप अखंड. वर्षा is rain, अंधड़ is storm, आतप is extreme heat. वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड. वन में प्रसून तो खिलते हैं, यू विल फाइंड फ्लावर्स इन अ फॉरेस्ट. बागों में शाल न मिलते हैं, यू वोंट फाइंड बिग ट्रीज इन अ गार्डन. वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं. वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड. वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं. कंकड़ियां जिनकी सेज सुघर, दोज़ हू डोंट माइंड स्लीपिंग ऑन हार्ड ग्राउंड. छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती हैं. जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही शूरमा निकलते हैं. Lakshagraha is for those who don't know, there was a house of lacquer that Duryodhan had gifted to the Pandavas with the intention of burning them alive. So that is the reference. जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही शूरमा निकलते हैं. बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा. My young princes,
जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, मे बी देयर फॉर्च्यून्स आर अबाउट टू टर्न, देखें आगे क्या होता है, देखें आगे क्या होता है। So now the second part of the poem. Now this section is very popular. Many of you, some of you would have read it. It's the section is called Krishna Ki Chetavni. So now they've returned from the forest. Now it's time to reclaim their kingdom. So what's going to happen? So they, as usual, they go to Lord Krishna for advice to say, what should we do? What should our advice be? Yudhishthir goes to Lord Krishna for advice. And Lord Krishna says, listen, I have very little faith that Duryodhana is going to be accommodating, but we must try because that's the right thing to do. So why don't I go as your peace emissary to the court with Duryodhana and ask for your fair share, and let's also offer him a compromise so that we don't feel that we have left anything on the table from our side and we've tried everything possible for peace. So the compromise is going to be, at least give us for the 5 Pandavas 5 villages, and we live in peace. We live you alone. You're our cousins. There's no need for war. And Lord Krishna goes to the court. He asks for this. And Duryodhana is drunk in power by that point. He feels he's invincible. He has the entire establishment. He's got the army. He's got the economy. He's got the administration. He's got all the elders supporting him. His father can't do really too much to control him anymore. So he not just refuses the demand, but he also says, I'm going to arrest Lord Krishna. And that becomes a spectacular part of the poem where Lord Krishna says, okay, that's now you're overstepping the mark because I am God. So it's a hugely entertaining part of the poem. It's it's popularized by Manoj Bajpayee, by Ashutosh Rana, etc. I'll try to do my justice to it. But it's a beautiful part of the poem where what does God mean? And how do you define God? And what Krishna does is then explains to Duryodhana why he can't be tied up in chain. And he gives one of the most wonderful descriptions ever written in Hindi poetry about what does God mean? And at a metaphysical level, at a physical level, at a conscious level, through dimension of space, time, etc. Anything you can imagine and many things you can't imagine, Dinkar has managed to capture in these very popular lines, which I'll try to do justice to. Krishna ki Chetavni. मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। So all immortality arises from me. अमृतत्व फूलता है मुझ में, and all destruction resides within me. संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, from where the sun is rising, that's my forehead. भूमंडल वक्षस्थल विशाल, the earth's crust is my chest. भुज परिधिबंध को घेरे हैं, look, I'm holding the earth's circumference in my hand. मैनाक मेरु पग मेरे हैं,
The mountains from our scriptures are beneath my feet. दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर. All the stars you can see are in my mouth. उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधिबंध को घेरे, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर. द्रगहोत दृश्य कांड देख. If you have eyes, look at this. द्रगहोत दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख. चर अचर जीव जग शर अक्षर. Every living creature that moves or does not move, everything that is conscious, every animate object, inanimate object, everything. Shar ashar jeev shar akshar nashwar manushya, mortal man. Surajati amar, and immortal gods. All immortal gods are within me. Shatakoti surya, Shatakoti chandra, Shatakoti sarit sar sindhu mandra. All types of water bodies you'll find within me. Shatakoti Vishnu Brahma Mahesh, Shatakoti Vishnu Jalapati Dhanesh. Jalapati is Lord of the sea, Dhanesh, Lord of the land. Shatakoti Rudra, all sorts of fire, all sorts of anger. Shatakoti Kal, Shatakoti Dandadhar Lokapal. Lokpal is king, Dandadhar is law-giving kings. Everything you can imagine is within me. I'll repeat that. Dragahot drishya akand dekh, mujhme sara brahmand dekh, char achar jeev jag shar akshar, nashwar manushya surajati amar, shatakoti surya, shatakoti chandra, shatakoti sarit sar sindhu mandra, shatakoti Vishnu Brahma Mahesh, shatakoti Vishnu Jalapati Dhanesh, shatakoti Rudra, shatakoti Kal, shatakoti Dandadhar Lokapal. जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हां हां दुर्योधन बांध इन्हें. भूलोक अतल पाताल देख. You'll see everything within me. गत और अनागत काल देख. See all the time that is past, but all the time that is yet to come. You see that within me. भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन. सी द फर्स्ट मैन हु वाज एवर बॉर्न. यह देख महाभारत का रण. महाभारत अभी हुआ नहीं है, बट ही सेइंग यू कैन सी इट विद इन मी. इफ यू रियली वांट यू कैन सी द महाभारत विद इन मी. यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है. अंबर में कुंतल जाल देख. सी ऑल द कॉन्स्टलेशंस. अंबर में कुंतल जाल देख, पग के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख. सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं. जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन. द विंड दैट यू सी इज माय ब्रेथ. जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन. पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर. मैं जबी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण. बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है. यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन. सूने को साध न सकता है. यू कांट लिसन टू अ सिंपल रिक्वेस्ट. वह मुझे बांध कब सकता है. हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना. तो ले अब मैं भी जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं. याचना नहीं, नो मोर रिक्वेस्ट, अब रण होगा. जीवन जय या के मरण होगा. टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर. फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा. दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं वैसा होगा. भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे. वायस श्रुगाल, फॉक्सेस एंड वल्चर्स सुख लूटेंगे, बिकॉज देयर विल बी सो मच ह्यूमन फ्लेश. वायस श्रुगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे. और आखिर तू भूषाई होगा. यू विल बी द वन हु इज डेड. हिंसा का पर दाई होगा, बट स्टिल यू आर गोइंग टू बी आंसरेबल फॉर ऑल द वायलेंस. थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े. केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे. कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते जय 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 जय.
third part of the poem. The third and the fourth parts are the conversation between Krishna and Karna. So the third part is Krishna speaking to Karna, and the fourth part is Karna's reply to Krishna, and that will be the end of the evening. But in the third part, where Krishna is speaking, now of course in the second one you saw him as God. Now you're going to see him as a politician, highly strategic, really trying to say, okay, how can I undermine Duryodhan's war strategy? भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, स्टंड आ मिला चकित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर, रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की तेड़ी घात चली. There was a lot of give and take in the conversation. शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है. मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहां तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है. चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल. हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मती गई मूड की मारी है. दुर्योधन को बोधूं कैसे, हाउ डू आई कन्विंस हिम, इस रण को अवरोधूं कैसे. सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा. बाहर शोणित की तप्त धार, शोणित ब्लड, तप्त धार वार्म रिवर, विल बी वार्म रिवर्स ऑफ ब्लड. बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार. निर्शन विषण्ण बिल्लाएंगे, द नेकेड एंड द हंग्री विल बी बेलोइंग, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे. सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा. बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार. निर्शन विषण्ण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे. चिंता है मैं अब क्या करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं. सब राह बंद मेरे आगे, बस एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, समराग्नि अभी टल सकती है. समर इज वॉर, अग्नि, समराग्नि इज the fire of war. You can still save शांति from the fire of war. समराग्नि अभी टल सकती है. पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन. तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे. तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा. क्या अघटनीय घटना कराल, what an unfortunate state of affairs. क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्षी का प्रथम लाल. बन सूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है. शरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर. मां का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी. किस्मत के फेरे में पड़कर, पाप प्रेम बसा दुश्मन के घर. निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को. पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहां मान इतना मेरा. चल होकर संग अभी मेरे, चाहे 5 भ्राता तेरे. बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे. कुंती का तू है तनय ज्येष्ठ, तनय इज चाइल्ड. कुंती का तू है तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धि शील में परम श्रेष्ठ. मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम. आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पाव पखारेंगे. पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्मराज युधिष्ठिर चिपचवर डुलाएगा. He will be holding your ensign. As a king you have your ensign.
पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्माचिप चवर डुलाएगा, पहरे पर पार्थ अर्जुन, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, उत्तरा इज अभिमन्यु's वाइफ, अर्जुन's डॉटर इन लॉ, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्माचिप चवर डुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा, क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा, सब देख तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे, खोए मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज दुर्योधन स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं, यश मुकुट मान सिंहासन ले, इट्स ऑल योर्स, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव को तज रण रोक सखे, माय फ्रेंड, अबैंडन द कौरव्स एंड स्टॉप वॉर, भूखा हर भावी फ्यूचर शोक सैडनेस सखे। कुरुराज समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव को तज रण रोक सखे, भूखा हर भावी शोक सखे, भूखा हर भावी शोक सखे। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है, दिन मणि से सुनकर वही कथा, दिन मणि, दिन का मणि सूर्य, दिन मणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूं विकलांग कथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूं, उन्मन यह सोचा करता हूं, कैसी होगी वह मां कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास दस्तक जिसको, हु होल्ड्स अ बेबी फॉर अ फुल टर्म, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। एक कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए, सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस मां ने मेरा किया जनन, वह नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका हिय था, हार्ट, पत्थर समान उसका हिय था, सुत से चाइल्ड, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था, गोदी में आग लगा करके, मेरा कुलवंश छुपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। मां का पेय भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने, वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौ मुझ पर तनी रही, कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलीन, जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था, पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था, सब देख रही थी दृश्य प्रथा, मां की ममता पर हुई वृथा, छिपकर भी तो सुधि ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। पाप पांच तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली, कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही, क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गवाने पर, युधिष्ठिर has lost everything, सुत के धन धाम गवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर, नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही,
वह पाप अभी भी है मुझ में, आई एम स्टिल ए इलेजिटिमेट चाइल्ड, वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा? सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ? क्या चाहता है कुंती का हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय? ये अभिनंदन नूतन क्या है? व्हाट इज दिस यूनिक प्रोपोजिशन? केशव, ये परिवर्तन क्या है? मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजू किसको, जननी है वही तजू किसको। हे कृष्ण, जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन ही गुनिए। धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया। नृपता देना, किंगशिप देना, नृपता दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंक से बना करके, रंक इज अ पॉपर, राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, ये जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। सच है कि मेरे बल पर ठाना है उसने महासमर, पर मैं कैसा पापी हूंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयश उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तनय, जिसको होगा उसका प्रत्यय। संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वह यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज्य मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन पर भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति कही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई भी कहीं ना चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तप त्याग शील जप योग दान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहलाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य, सुन वहीं हुए लज्जित होते, हम क्यों को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। लेकिन नौका तट छोड़ चली, द शिप इज लेफ्ट द शोर। कुछ पता नहीं किस ओर चली, ये बीच नदी की धारा है। सूझता न कूल किनारा है, ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है केशव, यह सुयश सुयश क्या है।
सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते, ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सर पर, चलता न छत्र पुरखों का धर। अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। सब देख उसे ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल जाति नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया। कुल जाति नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचरूंगा क्या। रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य होगा वो नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर। ट्रीज शेड हो अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने, उस पर न वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन। धरती की तो क्या है बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्योछा वर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। सिर लिए स्कंद पर चलता हूं, शोल्डर्स, सिर लिए स्कंद पर चलता हूं, इस दिन के लिए मचलता हूं। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर। कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा कुरुराज ताज। लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुरुराज्य चाहता मैं कब हूं, साम्राज्य चाहता मैं कब हूं। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना। जीवन का मूल्य समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं। धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय। ऑल सॉर्ट ऑफ एक्वायर्ड ऑल सॉर्ट ऑफ वेल्थ। दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा भी न छू सकी मन को। वैभव विलास की चाह नहीं, आई नो लव फॉर लग्जरीज। अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूं केवल। दान की देव सरित निर्मल, because he was a दानवीर, right? He said, I only want wealth so that I can give it away. दान की देव सरित निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, तुच्छ है। It's worthless. Kingdoms are worthless and pursuit of power is worthless. तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या है नर कर प्राप्त विभव। What does man gain by acquiring luxuries? चिंता प्रभूत, मैक्सिमम वरीज। अत्यल्पहास, मिनिमम प्लेजर। कुछ चाक चिक्य, सम मनी। कुछ पल विलास, सम कंफर्ट। पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या है नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभूत अत्यल्पहास, कुछ चाक चिक्य कुछ पल विलास। पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार धुते हैं। वी नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेजर। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रासादों के कनकाब शिखर, होते कबूतरों के ही घर। You know, only pigeons, and he's comparing it to princes who live in luxury. Only pigeons are interested in castles and beautiful elaborate nest. प्रासादों के कनकाब शिखर, होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है,
कंचन पर कभी न सोता है, रहता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। होकर सुख समृद्धियों के अधीन, मानव होता निज तप क्षीण। By surrendering yourself to luxuries, you start to lose any edge or talents you have. Slowly start fading away. होकर सुख समृद्धियों के अधीन, मानव होता निज तप क्षीण। सत्ता किरीट मणिमय आसन करते, मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल। You'll build gentlemen in palaces, you won't build warriors. चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल। पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावातों में, those who fly in storms fearlessly, पीते सौवारी प्रपातों में, those who drink from waterfalls, directly from big waterfalls, सारा आकाश अयन जिनका, those who are fearless, no bird can catch them in the sky, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, who eat poisonous snakes for their meal, वे ही फणिबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। उड़ते जो झंझावातों में, पीते सौवारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विधि उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश, अहि इज स्नेक, पाश द ग्रिप ऑफ द स्नेक। He's saying Duryodhan is in the grip of a snake, and I am the only one with the capabilities to try to get him out of it. दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विधि उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है। रह रहकर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती है। चाहता कि तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतू की समर में डूब मरूं। अब देर नहीं कीजिए केशव, अब शेर नहीं कीजिए केशव। धनु की डोरी तन जाने दें, संग्राम तुरंत ठन जाने दें। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। बस एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन। मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो उसे छुपा रहिए। वह उसे जान यदि जाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे। मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट वे पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य। रण में ही अब दर्शन होंगे, शर से चरण स्पर्शन होंगे। एरोज, शर से चरण स्पर्शन होंगे। जय हो दिनेश, अगेन सन, जय हो दिनेश। नभ में विहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। रथ से राधेय उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले के वीर शतबार धन्य, तुझसा न मित्र कोई अनन्य। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान, नरता का है भूषण महान। थैंक यू।